میری بہنوں ماؤں بچیوں یاد رکھو مرد کے بھی حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہیں، یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، لیکن اس کا خامن ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا عورتوں تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خامن تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا، اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خامند کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خامند کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خامند کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خامند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خامند کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خامند کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا شہادت سمجھو، اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرو۔ اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، کتب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بی بی سے نہ کیا کرے، کہ تو میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو اس کو سکھاؤ، عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت زیادہ ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا، دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، تو بیوی اپنے خامد کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خامد اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خامد کی بات سنے۔ فرمایا خامد اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خامند کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے آپ کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت، اس کے وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت جی جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر
पढ़े लिखे होने का मतलब ये कोई नहीं कि मैं तलाक ले लूँ और मैं जनाब मैंने BA किया होगा, मैं रोटी पका के खा सकती हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मेरा भाई बड़ा रईस है, मेरे अब्बा जी के बाद बड़े पैसे हैं, मुझे कमा के दे लेंगे। याद रख, पढ़ा लिखा उसको नहीं कहते जो बातें ज़्यादा कर ले, पढ़ा लिखा उसको नहीं कहते जो मुकाबला ज़्यादा कर ले, पढ़ा लिखा उसको नहीं कहते जो जवाब के अंदर तनकीद ज़्यादा कर ले। पढ़ा लिखा वो होता है जिसका हौसला पढ़ा लिखा होता है। पढ़ी लिखी बीबी वो होती है जो फर्मा बरदार ज्यादा होती है। पढ़ी लिखी वो होती है जो आदाब से ज्यादा आगाह होती है। पढ़ी लिखी औरत वो होती है जो खामद की इज्जत ज्यादा करती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दोज़ख में औरतों को ज्यादा देखा है। हुजूर क्यों? फरमाया, एक तो अल्लाह की नाशुक्री करती है, बात बात पे रो पड़ना बीवियों ने, बात ये कोई नहीं, वो कोई नहीं, ऐसा नहीं। अगर मेरी बहनें नाराज ना हो जाए, माएँ नाराज ना हो जाए, तो मुझे वैसे तलाश है उस बीबी की जो सुखी हो। अगर उसको अपने घर में सारा सुख है ना, तो उसको भाइयों का दुख शुरू हो जाएगा। मेरा वो जो 9 भाई है ना, मेरे नाम एक ही औलाद कोई नहीं, लिहाजा मैं बड़ी दुखी हूँ। भाई 8 की है तो खुशी कर ले, तू ना रो। कहती है बाकी तो सारे ठीक है, 11 बहनें हैं, वो जो 11वीं है ना उसका खामद अच्छा नहीं, भी तू तो ना अपने घर में रोना डाल। रोती रहती हैं, नाशुक्री करती रहती हैं, हर वक्त नाशुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और बुखारी के लफ्ज हैं, बीबियों याद रखना, ये हुजूर का फरमान पेश करने लगा बुखारी के। फरमाया, सारी उम्र खामद अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करे, एक दिन सलूक ना कर सके तो कहती है जब से तेरे घर आई हूं मैंने तो सुख पाया ही कोई नहीं। ये बुखारी है। फरमाया, सारी जिंदगी एहसानात कर, तू एक दिन नहीं ना देता तो कहती है वो फलानी बड़ी सुखी है, वो फलानी बड़ी अच्छी है, फलानी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत बड़ी बदबख्त है कि जो अपने खामन के सामने दूसरे मर्दों की फजीलत बयान करती है। कहती है वो देखे ना मेरा जेठ, मेरा देवर, मेरा फलाना बहनोई, वो कितना अच्छा है। पर मैं जो दूसरों की खूबियां अपने शौहर के सामने बयान करके अपने शौहर की गर्दन झुकाती है, बड़ी बदबख्त है, बड़ी बुरी हरकतें कर रही है। अजीज दोस्तों याद रखिएगा, बीबियां, ये सारी बातें हमने सिखानी है, ये सारी चीजें हमने औरतों को बतलानी है, ये सारे काम काज हमने औरतों को सिखाने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीबी वो होती है जो नेकी में मददगार साबित होती है। अच्छी बीबी कौन होती है? जो नेकी में हुजूर ने एक दुआ दी, नबी पाक की दुआ लेनी है, चाहिए दुआ हुजूर की, दुआ हुजूर देने लगे हैं। अल्लाह करे हम सब ये दुआ हासिल करने वाले बन जाएं। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह मेरे उस उम्मती पर रहम फरमा जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है, और अगर नहीं उठती तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क देता है। बुखारी मुस्लिम। फरमाया, ऐ अल्लाह उस बीबी पर रहम फरमा जो सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है, सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है, और अगर नहीं उठता तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क देती है, लेकिन कहती है उठिए। पर मैं ये साले औरत की अलामत है। और फिर अपने घर का ख्याल रखें। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक़, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफ्फीज़ाद भाई हैं, और नबी पाक ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी। अशरा मुबशरा सहाबा में से हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहिबजादी हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक़ का निकाह हुआ था। हज़रत अस्मा कहती हैं मैं अपने बाप के घर से गई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने बड़ा माल दिया हुआ था, बड़ी दौलत थी, नौकर चाकर थे, बड़ा कुछ था। फरमाती हैं लेकिन जब मैं अपने शौहर के घर गई कोई काम काज करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। फरमाते एक घोड़ा, एक ऊंट मेरे शौहर का। फरमाती हैं घोड़े के लिए घास भी मैं लाती और खजूरों की गुठलियां चुन के लाती, चक्की में लाके पीसती और ऊंट के लिए ग़िज़ा तैयार करती। फरमाती हैं मैं सारे घर का काम काज करती, और हद मेरी फर्मा बरदारी की ये थी कि बाहर एक आदमी सौदा बेचने आया और मुझसे कहने लगा तू इजाजत दे तो तेरे दीवार के साए में काम काज इतना करती हूँ कि अपने शौहर के जानवरों की देखभाल करती हूँ।
बाहर एक आदमी सौदा बेचने वाला आया, कहने लगा अस्मा अगर इजाजत हो तो तेरी दीवार के साए में बैठकर मैं चीजें फरोख्त कर लूं। तो फरमाती है नहीं, मैं नहीं इजाजत देती, ये मेरे शौहर इस मुमलिकत के सरबराह हैं, मेरे खामद आएंगे तो उनसे पूछ के तुम्हें साए की इजाजत दूंगी। शौहर आएंगे तो पूछूंगी, वो कहेंगे तो तू साए में सौदा बेच सकता है। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर कहते हैं शिकवा कोई नहीं, गिला कोई नहीं, कोई किसी किस्म की बात नहीं, हाथों पे छाले पड़ गए। फरमाती है काम कर करके मैं थक गई, वक्त से पहले बूढ़ी होने लगी। मेरे अब्बा जी ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गुलाम भेजा, एक खादम भेजा कि मेरी बेटी थक गई है काम कर करके। फरमाती है डायरेक्ट नहीं भेजा, हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर आप मेहरबानी फरमाए तो जुबार से कह दे मेरी बेटी है वो थक गई है, मैं एक नौकर दे देता हूँ काम में हाथ बटाएगा। फरमाती है जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर से कहा रसूल करीम ने मेरे घर में वो मुलाजम भेजा तो मैंने अपने आप को आज़ाद समझना शुरू किया। दोस्तों, माओ बहनों बच्चियों, याद रखो तुम बड़ी शहजादियाँ हो। वो किसी दानश्वर का कॉल देख रहा था, वो कह रहा था कि कोई औरत अपने शौहर के घर में मलका ना भी हो तो अपने बाप के घर में शहजादी तो ज़रूरी हुआ करती है। अपने शौहर के घर में मलका ना भी बन सके तो अपने बाप की शहजादी ज़रूर होती है। लेकिन कौनैन की शहजादी का नाम हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा है। सैयदा फ़ातिमा अज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की पीसती हैं। हज़रत फ़ातिमा और मेरे दोस्तों जितने भी घर के काम बीबी कर ले, कभी छाले देखे आपने किसी के हाथों में? शहजादी कौनैन के हाथों में छाले होते। अल्लामा सफूरी ने लिखा है इतनी परेशानी का आलम है, गुर्बत है, शहजादी कौनैन के दो जहां के शाह है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। एक दिन हजरत अली से शिकवा कोई नहीं कि आप खर्चा नहीं देती, कहने लगी मुझे पता है आपके पास वसाइल ज़्यादा नहीं, अगर चरखा ला दें, हजरत फातिमा फरमाती हैं चरखा ला दें तो मैं सूत बना के आपका हाथ ना बटा दूं। मैं आपका चक्की पहले पीसती हैं, आटा पहले गूंथती हैं घर में। अल्लामा सफूरी ने लिखा है, कहने लगी चरखा ला दें। हुजूर चरखा लेके आए, हजरत अली चरखा लाए, सैयदा फातिमा ने चरखा भी चलाना शुरू कर दिया। चक्की पीस के, बच्चे पाल के, आटा गूंद के, सारे काम करके, साथ चरखा भी 6 दिनार का सूद पहली दफा बिका। तवज्जो है आपकी? 6 दिनार पहली दफा बिका। फरमाती हैं एक लिस्ट दी हजरत फातिमा ने, काली ये 6 दिनार ले जाओ और बाजार से ये सौदे ला दो। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते बाजार गया तो सामने से मुझे एक शख्स मिला, वो मांग रहा है, भीख मांग रहा है। मेरे पास आया, कहने लगा अली कुछ देना। मैंने कहा क्या चाहिए? कहने लगा 6 दिनार। कितने? फरमाते हैं इलाही माजरा क्या है, जेब में हाथ डाला, ये मुस्तफ़ा का घराना है, ये रसूलुल्लाह का घराना है और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना ही नूर का। रसूल पाक के दामाद मुक़्तदर ने जेब में हाथ डाला, 6 दिनार दे दिए। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि घर जाके फातिमा को क्या जवाब देना, उसने तो मेहनत करके कमाए थे। फरमाते हैं मैंने रुख फेरा तो एक आदमी भागा भागा आ रहा है, कहने लगा अंत अली, आप अली हैं? मैंने कहा हाँ मैं अली हूँ। नाम मन अंता, तू कौन है? कहते मैं बज़ाहिर नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगा ये छोड़िए, आप नहीं जानते, मैं तो आपको जानता हूँ ना। आपको सारा जमाना दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया मैं तो आपको जानता हूँ ना। कहा क्या बात है? कहने लगा मुझे सफर पे जाना पड़ा, ये ऊँट बेचना है, खरीदेंगे? कितने का? कहने लगा 100 दिनार। फरमाया मेरे पास तो पैसे नहीं। कहने लगा जब होंगे दे देना। जब हजरत अली कहते मैंने उससे लगाम पकड़ी, वो चला गया, मैंने रोक फेरा ही था, एक बंदा आ गया, कहने लगा जी ऊँट बेचेंगे? ऊँट बेचेंगे? मैंने कहा बेचना है, क्या दोगे? कहने लगा आगे गया, पीछे गया, ऊँट के दाएं गया, बाएं गया, क्या लेंगे? मैंने कहा आप बताइए। कहने लगा जी 160 दिनार। खरीदा कितने का? और उधार बेचा कितने का? और नगद
फरमाते हैं मैंने उसको दिया, 160 दिनार लिए। अब मेरे दिल में ख्याल है वो जिससे ख़रीदा था वो मिल जाए तो वापस तो कर दूँ। फरमाते हैं मैं ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया। मैंने कहा पकड़ अपने पैसे। 100 दिनार उसको दिया, 6 दिनार का सौदा खरीदा, 54 दिनार जेब में डाले, लाके सैयदा फातिमा की गोद में रखे। मैंने कहा फातिमा 54 दिनार, पाक नबी की पाक बेटी, इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी। ये नहीं फरमाया कि जो आता है जहाँ से मर्जी ला मेरे खर्चे पूरे कर, ये नहीं फरमाया। काली मेरी जुर्रत नहीं पूछ सकूँ, पर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के गले से जो लुकमा उतरे हलाल का उतरे। मैं पूछ सकती हूँ 54 दिनार कहाँ से आए। हज़रत अली कहने लगे कौनैन के बादशाह की बेटी, 100 दिनार, तेरे 6 दिनार तो दरवेश और फ़कीर ले गया, 100 दिनार का ऊँट खरीदा, 160 का बेचा, 6 का सौदा ले आया, 54 वापस ले आया। बेटियां बेटियां ही होती हैं, बेटियां बेटियां ही होती हैं। बेटी 7 समुंदर पार भी हो तो खैर अपने अब्बा जी के घर की मांगती रहती है, बेटियां बेटी ही होती हैं। हज़रत फातिमा कहने लगी जाइए पहले जाके हुजूर को तो बता के आइए, इस बरकत के बारे में हुजूर को तो बतला के आइए। शेरे खुदा कहते हैं मस्जिद नबी में कदम रखा, ख्याल आया, ख्याल आया, ख्याल आया। मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। फरमाते ख्याल आया, रसूल करीम ने मुस्कुरा के फरमाया अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत, देखा मेरी शहजादी के 6 दिनारों की बरकत। पर मैं तुझे पता है बेच कौन गया है और खरीद कौन गया है? क्या सोनिया मैं नहीं जानता। फरमाया जो ऊंट बेचने आए वो मीकाईल थे और जो खरीद के ले गए वो जिब्रील अमीन थे। फरमाया जो आए हैं वो जिब्रील। जो आए बेच गए मीकाईल थे और जो ले गए और बंदोबस्त करा रहा था मेरा मौला खुदा खुद वीर मजलिस बूद, बंदोबस्त करा रहा था मेरा रब बंदोबस्त करा रहा था। बहनों बेटियों शिकवा छोड़ दो, गिला छोड़ दो, शिकायत छोड़ दो, अपना घर बसाओ, अपना घर बसाओ, अपने घर में वक्त गुजारो। मेरे भाइयों याद रखो, गौर करो, बीवी के बारे में उसने सलूक का मुजाहरा करो। हम जब बात करते हैं तो गालियां देते हैं माज़अल्लाह, अपने ससुराल वालों को बुरा भला कहते हैं, तल्ख जुमले बोलते हैं, सख्ती के साथ पेश आते हैं। याद रखिए बेटी सारा कुछ सुन लेती है पर अपने माँ बाप के खिलाफ बात सुनती है तो कलेजा फट जाता है। बेटे तो कई दफ़ा लालच का रिश्ता होते हैं, बेटी का ही तो प्यार होता है माँ बाप के साथ। बेटी सुन सकती है कि तू उसके भाई को बुरा कहे, तू खुद बताना कि तेरी बेटी के सामने, तेरी बहन के सामने तुझे कोई बुरा कहे तो तेरी बहन बर्दाश्त नहीं करती, तू क्यों किसी के सामने उसकी बहन को, उसके भाई को, उसकी अम्मा को, उसके अब्बा को बुरा भला कह रहा है? तो ये हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। अगर तू किसी की बेटी को अपने आंगन में सुख देगा तो अल्लाह तेरी बहन को उसके घर में सुख अता फरमाएगा। अगर तेरे आंगन में किसी की बेटी खुश रहेगी तो कल तेरी बेटी भी किसी के आंगन में खुशी रहेगी। तो इसलिए मेरी अम्मा जी मरहूमा अक्सर फरमाया करती थी, वो कहती थी बेटा किसी की बेटी के साथ जो बदसलूकी करता है उसकी अपनी भी सुखी नहीं रहा करती। अगर तू किसी से उसने सलूक करेगा चल यही समझ के कर ले कि मैं इसके साथ करूँगा तो मेरी बेटी अपने घर में सुखी रहेगी, मेरी बहन अपने घर में सुखी रहेगी, मेरी जो है वो बहन और बेटी के सुख की खातिर ही बीवी से उसने सलूक कर लूं। याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना, अगर सुख चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, सुख देना शुरू कर दो। सुखी रहना चाहते हो, सुख बांटने शुरू कर दो। दुख छोड़ दो, थोड़ी सी जिंदगी है, मुख्तसर सा वक्त है, किसी भी मोड़ पे जिंदगी की शाम हो जाएगी, जनाजे उठेंगे और लोग निकलेंगे। सुख दो, बीवियों इताअत गुजार हो जाओ, गर्दनें झुका दो। तू शौहर का जुल्म बर्दाश्त करेगी तो मेरे इमाम का वादा है अल्लाह तुझे बच्चों की तरफ से सुख अता फरमा देगा। जवानी में दुख बर्दाश्त किए जा सकते हैं, अगर बच्चों